wellness clinic. Weisheit is a German word. Its English meaning is wisdom. So which composite of 5 things: knowledge, experience, understanding, common sense, insight. So these are 5 things which actually makes any person, if we are saying that is a wise person, so it's composite of these things. And we have our clinic at Siagat Road. We are mainly working on prevention and reversal of lifestyle diseases. So like whatever I'm sharing today, so I'm just a representative. There are many people, many associates are there, a lot of spiritual guidance is there, my family, my team, my friends, my mentors. So many people have supported me in my journey, and I'm just their representative. So just like Gaurav sir told, so we have this organization under Weisheit Group. I'm having around 12 years of experience, and I have worked in small startups also, to a very big MNCs, and mainly grew up in Pune, Maharashtra. So my skills and expertise is mainly into pharmaceutical sales, team management, and marketing strategies. These are services which I normally offer. That is sales and marketing, entrepreneurship development, and business development. So this was a small, like I will just share, already Gaurav sir told all of you. So like beginning was very humble. Like when I started my upbringing was in a middle class family, and my father was having his grocery store, and a very routine background. So we had everything, like we had lot of support from family. लाईक आपण सगळे लहानपणी ऐकतो की यू शुड हॅव दॅट अंथरून पगून पाय पसरत. सो दॅट वॉज अ फिलॉसॉफी typically in the family. So grown up like that. So from the age of, you can say, 12, 13, I was used to work with my father in kirana store, and it was good life. But all of a sudden, like the first incidents that happened, which was the biggest stroke, you can say, that was when I was in 11th standard. So my father died out of stroke, and he was very healthy person, but at very young age, his age was only 43. And it was like at night he had stroke, and no one was aware about it. Like in the morning when my mother gone to awake my father, that time she understood ki he's no more. And that was a very big, you can say, setback, because he was the only earning person for our family. And no, actually there was no big support from other things. So it started like he did some investment. So we had one store at a shop at Sadashupet. वो हमने रेंट आउट किया. देन हमारा जो वो किराना स्टोर जो पप्पा रन कर रहे थे उसे रेंट आउट किया. एंड लाइफ स्टार्टेड. लाइक व्हेन ही वाज अलाइव, our family income was, you can say, around 50,000. After his death, it came down to only 10,000 or 12,000 rupees a month. And like after that, I did my 12th and then took admission to D Farm. So when I was studying in second year D Pharmacy, me and my brother, we started our first startup. That was a greeting card business. And literally, like, we have gone to store, we have done cold calling, we have sold medical store in gift store, we have store sell it in good like organizations. Even we have sold that greeting cards at, you can say, जो flowers बेचते हैं, bouquets, उनको हमने बेचा medical store. So we learned many things in that business actually, and it was amazing. And for me as a student, best part was ki that business was taking care of my fees and my expenses. And I had very lavish life. Like you can say around 15 years back, in as a college student, my per month expense was around 5,000 rupees, and very good life. Then after finishing that, when I passed out B Farm, I was around 22 and a half. So that time my goal was to get free at 35, and it was very crazy goal. And the simple reason was my father died when he was 43, and my grandpa died when he was 42. So my goal was ki I should be free by 35, so that my family or my kids will be safe. And I started discussing this. So I discussed with all my family, all my brothers, friends.
and they all thought I am crazy and it's just a joke. So no one took me seriously. So the journey started, but I was very serious about it. So I started first job of, you can say, as a teacher. Then I did lecturership for 6 months, and I understood this job I will not be free lifelong. So then I took directly a U-turn and I gone to marketing. So I worked in Sardia, which was a multinational company. There I was having a very good profile. Then I came back to Pune and I shifted to Sanofi Aventis, another French multinational. And while working in Sanofi Aventis, I was used to cover Daund. And there actually I met one of the doctor. Like I was used to meet as a medical representative. That is Dr. Rajendra Mane. And he was MD physician, diabetic. He was used to do diabetes practicing diabetologist, and a very good doctor. So after 6 months of interaction, he asked me one day, कि राज, what is your plan? Like आप lifelong job करना चाहते हो, इसी में आप grow होना चाहते हो, do you have any other plan? So he asked me that, what is your plan? And I was actually very skeptical and very, you can say I was having a lot of fear कि कैसे इनको कैसे बताऊं ना कि my goal is this. But courageously I told him, I discussed with him कि sir, I want to get free at 35. And friends, you will not believe, he was the first person in my life who was took me seriously. And he told it's possible. And he asked me two questions. First question was, how much money you want when you will be 35? At the age of 35, कितना पैसा चाहिए आपको per month? तो जब मैं सनोफी में था तो मेरा अर्निंग अराउंड 25-30,000 था और अच्छा इंसेंटिव्स एक्सपेंसेस था, तो वो अराउंड 40-45,000 तक था. तो मैंने उनको बोला, सर, इवन इफ आई गेट 1.5 लाख रुपीज पर मंथ एट द एज ऑफ 35, आई विल बी सेफली, आई कैन फ्री, आई कैन रिटायर. And he told okay. And then second question he asked me, that was, do you like reading? तो मैंने बोला कि जो मेरा गोल है उसका और रीडिंग का क्या कनेक्शन है. तो मैंने उनको बोला, सर, आई डोंट लाइक रीडिंग. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं अगर 10 साल पहले, 12 साल पहले अगर कोई मुझे न्यूज़पेपर देता था तो मैं उसमें सिर्फ दो ही चीजें पढ़ता था, चिंटू एंड भविष्य. आई हेट रीडिंग. And even in my degree exams, I used diploma books to study. And I told him, sir, I don't like reading. And he bluntly told me, then Rajkumar, you will never be successful in your life. And मैंने उनको बोला कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, लाइक. सो ही टोल्ड कि वो एक हैबिट है जो आपको इनकलकेट करना पड़ेगा. और उन्होंने एक स्मॉल बुक था, स्किल विद पीपल, वो मुझे गिफ्ट किया. तो मैं वहां से बाहर आया, मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पे मैंने वो पूरा बुक पढ़ा. And from that day, like till today, if you come to my office, my home, I have a library of, you can say, 300-400 good books. And I'm very proud today to say that I am addicted to reading. If you give me good food, a good stay, and good books, I can stay for a number of days. And that one person, like, he has inculcated, like he played very important role in giving that. So he suggested, like when I discussed this plan with him, he suggested one book to me, that is Cash Flow Quadrant by Robert Kiyosaki. आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना होगा. रिच डैड पुअर डैड इज हिज फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक इज दिस. सो उन्होंने बोला आप वो बुक पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि आपका जो गोल है वो आप कैसे अचीव करेंगे. तो मैंने स्टार्ट किया. लाइक उन्होंने मेरे को फाइनेंशियल प्लान, उन्होंने मेरे को जो सजेस्ट किया, डॉक्टर राजेंद्र माने सर ने, तो उन्होंने 2 पॉइंट्स मुझे बताए कि राजकुमार आप क्या करो, आप असेट्स को बिल्ड करो. तो असेट का मीनिंग क्या है कि असेट्स पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट एंड लायबिलिटी इज विच टेक्स आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट. एंड दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन बाय रॉबर्ट कियोसाकी. तो वो टाइम पे ऐसे था कि मेरे जो फादर का शॉप था सदाशिवपेट में, हमने ऑलरेडी उसको सेल किया था बिफोर, लाइक यू कैन से 1 ईयर. एंड वी परचेज 2 more प्रॉपर्टीज इन सेम लोकेलिटी. तो मुझे वो एक चीज क्लिक हो गई, क्योंकि वो प्लान था, वो जो शॉप का रेंट था वो मेरे 35 को फ्रीडम जो है उसमें एक रोल था उसका. तो मैंने बोला हाँ, इट मेक सेंस. बट सेकेंड थिंग विच ही सजेस्टेड, इट वॉज बिल्ड मल्टीपल असेट्स, एटलीस्ट 5. तो उन्होंने मेरे को बोला दैट टाइम अराउंड 10 years बैक कि
he was having almost you can say 5+ assets that time. अभी तो वो 10 से भी ज्यादा रहेंगे. तो then I started like जो उन्होंने बोला, then I read book. So I will like to share this very beautiful concept with all of you that is I got from cash flow quadrant. तो उसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते कि 4 तरह से आप पैसा कमा सकते हो, एज ए एम्प्लॉय, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, एज ए बिग बिजनेस ओनर एंड एज ए इन्वेस्टर. सो एम्प्लॉय कौन है? जो काम करता है दूसरों के लिए. सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का बिजनेस होता है, लाइक किराना स्टोर है या मेडिकल का स्टोर है, डॉक्टर है, सीए, दे ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड. कंसल्टेंट है. बिग बिजनेस ओनर मीन्स दे हैव अ टीम ऑफ यू कैन से मोर देन 500 पीपल. एंड मेनी टाइम्स मैंने देखा है एंटरप्रेन्योर से ना वो एक गलती करते हैं. वो चाहते तो बी क्वाड्रेंट बिजनेस है, लेकिन वो होते एस क्वाड्रेंट में. और एस क्वाड्रेंट अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ेंगे तो वो बताते हैं सबसे डेंजरस क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना सारा काम आपको करना पड़ता है. एम्प्लॉय तो भी एक दिन छुट्टी ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड छुट्टी नहीं ले सकता है. किराना का दुकान है, शॉप खोला पैसा आएगा, शॉप बंद पैसा बंद. मेनी टाइम्स बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो एस क्वाड्रेंट का जो ट्रैप रहता है उसमें अटक जाते हैं. तो मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा, आप सच में अगर एंटरप्रेन्योर हो, आप आपके लाइफ में ग्रो होना चाहते हो, आप ये बुक जरूर पढ़िए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी. तो उसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते कि आप माइंडसेट बिल्ड करो. और ये जो 4 क्वाड्रेंट है, ये 4 माइंडसेट है. रॉबर्ट कियोसाकी बताते ये कोई लो पर्सन नहीं है, इट्स अ माइंडसेट. आपको बहुत बार ऐसे लोग दिखेंगे कि जो ई क्वाड्रेंट में लेकिन बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि वो है ना होते ई क्वाड्रेंट में, लेकिन उनका जो माइंडसेट होता है ना वो एस क्वाड्रेंट होता है. वो खुद का समझ के करते हैं जॉब. वी कैन से इन टुडेज वर्ल्ड वी टेल द टर्मिनोलॉजी कॉल्ड इंट्राप्रेन्योरशिप. सो वो होते, वो हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं और वो दे ग्रो. लाइक उनको जो भी प्रमोशन होता है, जो भी सारी चीजें होती है वो उनको मिलती है. मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताना चाहूंगा, दैट इज बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग ई क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल होते हैं और बाद में वो एस क्वाड्रेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो माइंडसेट चेंज नहीं करते. उनका वो 5, 10, 15, 20 साल का ई क्वाड्रेंट का एक्सपीरियंस होता है और वो माइंडसेट होता है, और वही माइंडसेट से वो एस क्वाड्रेंट बिजनेस चालू करते हैं और वो मिजरेबली फेल होते हैं. क्योंकि अगर आपको एस क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल होना है, यू शुड हैव एटलीस्ट एस क्वाड्रेंट माइंडसेट. But if you want to really grow, you should build a mindset of B quadrant. You need to build a team. You need to build a team of more qualified people. You need to build a team of big, like कि आपसे भी होशियार लोगों का आपको टीम बिल्ड करना है. एंड लास्ट इज एवरी हर एक पर्सन का ड्रीम होना चाहिए कि आई क्वाड्रेंट में जाना है. जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम है कि मैं काम करूं नहीं करूं, आई शुड मेक मनी. सो ये 4 क्वाड्रेंट है. और कैश फ्लो क्वाड्रेंट में जो दूसरा कंसेप्ट उन्होंने डिस्कस किया रॉबर्ट कियोसाकी ने, वो है हाउ यू विल बी पुअर, मिडिल क्लास और रिच. तो देखिए ये जो है ना पुअर, मिडिल क्लास और रिच, ये क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. आप कोई भी क्वाड्रेंट में हो, आप ये हो सकते हो. तो एक क्लासिकल एग्जांपल में देना चाहता हूं. पुअर यानी क्या? जिनका इनकम जो है वो पूरा एक्सपेंस में जा रहा है, दैट इज पुअर. तो आप सभी लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा बी क्वाड्रेंट का पर्सन है जो पुअर है. आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ऐसा कौन सा बी क्वाड्रेंट पर्सन है जो आज पुअर है. कोई एग्जांपल्स अगर आप देना चाहते तो यू कैन जस्ट पोस्ट दैट इनटू आवर चैट बॉक्स. सोचिए कि जिनका 500 लोगों से भी ज्यादा लोगों का टीम था या वो बी क्वाड्रेंट में थे, लेकिन आज वो पुअर है. एनी एग्जांपल? Yes, we have someone has told one example. So many examples are there, right? उसमें एक example, you can take an example of Vijay Mallya. You can take an example of Anil Ambani. They are into B quadrant, but क्योंकि it is not dependent on which quadrant you are operating. It is dependent on what is your cash flow. Second is what is the cash flow of a middle class. आप देखिए एकदम क्लासिकल एग्जांपल है. इनकम आता है जॉब का, सैलरी या जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका आता है, और वो जो उनके लायबिलिटीज है उसमें से चला जाता है एक्सपेंसेस में. सो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं ये जो 6 वर्ड है ना, ये 6 वर्ड आपको पुअर, मिडिल क्लास और रिच कर सकते हैं. दिस 6 वर्ड्स आर इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैश फ्लो.
So if you want to become rich, you should build assets. And I have a very classical example. मेरे जो father-in-law है ना, he is into E and S quadrant, but he is rich because he worked in a government. So he is having his pension. While working, he has built some assets. He started his रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो जो शॉप है उसमें वो वर्क कर रहे हैं, तो वहां से भी उनका इनकम है. और उनका जो मंथली इनकम है दैट इज यू कैन सी इन बिटवीन 1.5 to 2 lakh rupees. बट उनका जो एक्सपेंस है दैट इज ओनली 25-30,000 rupees. सो इट्स अ आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अ रिच पर्सन कि इनकम आ रहा है, वो असेट्स में जा रहा है, वापस वो असेट से इनकम बन रहा है. सो आप सभी का गोल यही होना चाहिए. अगर आप सच में रिच होना चाहते हैं, आप कोई भी क्वाड्रेंट में हो, आपको ये प्लान करना है. और आइडियल सिचुएशन इज यू आर इनटू बी क्वाड्रेंट एंड यू आर रिच. तो वहां पे आपका एक लाइफस्टाइल हो सकता है. यू कैन ड्राइव अ मर्सिडीज बेंज कार, या यू कैन हैव अ बिग हाउस, बीच हाउस, फॉरेन. तो वो आपका अचीवमेंट कब होगा? इफ यू आर इनटू बी क्वाड्रेंट. बट योर अल्टीमेट गोल शुड बी टू गेट रिच. यू शुड बी फाइनेंशियली फ्री. तो उसके लिए आपको असेट्स बिल्ड करने हैं, जो मेरे मेंटोर्स से मुझे बताया था. उसके बाद में मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड वन बिजनेस विथ माने सर. एंड उसके साथ मैं जॉब भी कर रहा था. तो जॉब का जो प्रोडक्टिव टाइम था मैं जॉब कर रहा था, और जो मेरा नॉन प्रोडक्टिव टाइम था, जो मैं पहले टीवी देखने में या जो वेस्ट होता था, वो टाइम मैंने एजुकेशन में लगा दिया. बुक्स पढ़ता था, माने सर के जो भी एसोसिएशन थे उसमें जाता था, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. तो उसमें से जो वो माइंडसेट है मेरा कैसे था, मेरा अपब्रिंगिंग जो था वो एस क्वाड्रेंट ही था. तो मेरे पास एस क्वाड्रेंट माइंडसेट ऑलरेडी था, क्योंकि माय फादर वाज अ एस क्वाड्रेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड थे. तो ब्लड जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड का है. तो वो मैं एम्प्लॉय यानी जॉब भी मैं वैसे ही कर रहा था. देन आई स्टार्टेड स्लोली बिल्डिंग अ माइंडसेट ऑफ अ बी क्वाड्रेंट, कि मुझे मेरे से भी अच्छे लोगों का टीम बिल्ड करना है. एंड देन आई स्टार्टेड. Then I worked in I launched one Indian multinational company, Fountain Life Sciences, scratch से. तो उसके पहले ऐसे था कि मैंने सारे बिग मल्टीनेशनल्स में काम किया था. एंड देन आई डायरेक्टली केम डाउन टू लॉन्चिंग, एंड इट वाज अ वेरी टफ टाइम. तो वहां पे मुझे बहुत सीखने को मिला. तो अगर आप कोई भी जैकमा या कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को सुनेंगे तो वो बताएंगे कि अगर आप सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहिए. वहां पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट है या किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो आई विल रिकमेंड यू कि आपका अगर करियर स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट विथ स्टार्टअप्स. वहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी. तो वो एक्सपीरियंस के साथ मैंने क्या किया, along with my business with Dr. Manesar, I launched my own pharma company in partnership in 2015 January. लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, on the same day 1st Jan 2015 I got promoted in Fountain Life Sciences as a business manager. On the same day I resigned and I started my pharma company in partnership, and it was very good experience. Like जो negotiation चल रहा था, जो मेरे MD थे, they have called me कि राजकुमार don't resign. आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू, बट यू डोंट रिजाइन. लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि फाउंटेन लाइफ साइंसेस में आई वाज ऑल इंडिया नंबर 1 सेल्स पर्सन. माय अर्निंग एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाज 1.25 lakhs. एंड आई वांटेड टू टेक अ डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग हेल्फेन, जहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, और जो मेरा अर्निंग था 1.25 लाख, इससे वो 50,000 पे आने वाला था, क्योंकि आई वाज अ वर्किंग पार्टनर ओवर देयर. तो इट वाज, यू कैन से, मिक्स. इट वाज जॉब प्लस बिजनेस था. तो मेरे पास वो डिसीजन वाज अ वेरी ट्रिकी, क्योंकि लॉन्चिंग का कंपनी यानी वापस सब जीरो से स्टार्ट करना था. तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन खुद को पूछा, अगर मैं फाउंटेन में कंटिन्यू करता हूं, दैट टाइम माय एज वाज अराउंड 27, तो 35 को अगर मैं फ्री फाउंटेन में से रिजाइन करता हूं तो कितना पैसा आएगा? इट वाज, आंसर वाज 0 रुपीज, क्योंकि जॉब है. और दूसरा था कि अगर मैं अभी हेल्फेन स्टार्ट कर देता हूं और अगर बिल्ड करता हूं अच्छे से फार्मा कंपनी, तो 7-8 साल में अगर अच्छे से सेट होता है तो क्या 1 लाख रुपए आ सकता है मंथली. एंड आई टुक दैट डिसीजन. आई स्टार्टेड इन पार्टनरशिप. तो वहां पे जो मेरे पार्टनर्स थे, उन्होंने 2013 में ये जो क्लिनिक है स्टार्ट किया था, उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, अराउंड 50-55 लाख इन इंफ्रास्ट्रक्चर. देन उन्होंने लाइक रनिंग कॉस्ट था 2 साल का अराउंड 15-20 लाख रुपीज. सो 70 लाख रुपीज उनका इन्वेस्टमेंट था. लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें थी कि वो वर्क नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर 1 साल उससे रेंट आउट कर दिया. और 2016 में अराउंड इन जून जुलाई मंथ
उन्होंने मुझे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट वो प्रीमाइसेस दिखाया और मैंने एक बिजनेस प्लान बना के दिया उनको। तो वो उनको लगा कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका तब तक का ऐसे था कि वो डॉक्टर्स को सैलरी पे कर रहे थे एंड उनके पास में 2 भी डॉक्टर्स नहीं थे। और मेरा जो प्लान था वो ऐसे था कि डॉक्टर्स मुझे पैसा देंगे या डॉक्टर क्लिनिक को पैसा देंगे, हम उनको अच्छा सर्विस देंगे और डॉक्टर्स विल पे। तो उनको लगा कि हाइपोथेटिकल है, नहीं है पॉसिबल। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि राजकुमार यू ज्वाइन दिस, वी विल पे यू सैलरी। मैंने बोला सर सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि असेट बिल्ड करना था। तो मैंने उनको बोला कि एक काम कीजिए, आई विल टेक स्टेक इनटू दिस। आप सोचिए कि एक बहुत ही टफ प्रोजेक्ट था वो। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं। और उनको मैंने बोला कि सर मैं, वो बोले कि 70 लाख इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर, आई विल डू इन्वेस्टमेंट, आई विल टेक 23% स्टेक इन दिस एंड आई टुक दैट। और मैंने वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किया, जो भी वर्किंग कैपिटल था वो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो ये ये जो हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस था और ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें मेरा बहुत इन्वेस्टमेंट, आई डिड अराउंड 50 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट। ऐसी अगर आपको मेरा अभी तक का बैकग्राउंड समझ में आया रहेगा, तो आई हैड नो सपोर्ट एक्चुअली फ्रॉम फैमिली। ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उनका गुडविल बहुत अच्छा था, तो मेरे को लोन्स बहुत आसानी से मिल गए। तो मेरे को मेरे नाम पे लोन नहीं मिले, मेरे को मेरे फैमिली के गुडविल के नाम पे लोन्स मिले थे। और मैंने 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, 25 इन हेल्थ एंड 25 इन दिस क्लिनिक। बाद में मैंने सोचा कि अभी जो भी मैं असेट बिल्ड करूंगा, आई विल नॉट इन्वेस्ट। देन इन 2017 वी स्टार्टेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 2017 में हमने और एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट मैंने लेस देन 50,000 इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू कि ये दो प्रोजेक्ट जो इतने कम अमाउंट में मैंने स्टार्ट किए थे, अभी तक ये दो प्रोजेक्ट में से वी डिड वेरी गुड टर्नओवर एंड वी गॉट वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी। यू कैन से मोर देन जो मेन प्रोजेक्ट है उससे भी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो भी नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, आई विल नॉट डू मच इन्वेस्टमेंट, मैं जो भी विजडम है उसका यूज करूंगा। देन वी स्टार्टेड वी स्टार्टेड वन मोर प्रोजेक्ट, दैट इज कंसल्टेंसी की, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं फार्मा में, फार्मा कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए, या जो फार्मा के कुछ अच्छे बड़े ब्रांड्स है जो नए ब्रांड्स लॉन्च करना चाहते हैं। देन प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर वाज मेडिको लीगल। एंड 2018 एक्चुअली आई हैड अ वेरी बिग, लाइक यू कैन से, ये जो कोविड-19 है ये मेरे लिए सेकेंड सुनामी है। जो फर्स्ट सुनामी था वो 2018 में था। लाइक इन अगस्त मंथ व्हाट हैपन कि आई वॉज लाइक कि फ्रॉम सैलरी आई केम इनटू परसेंटेज, वो प्रॉफिट शेयरिंग मेरा था। और 2017 तक मैंने अच्छे से उसको, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो फार्मा था उसको अच्छे से सेट किया था, एक सिस्टम बिल्ड किया था, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग थी। और अगस्त में वी फ्रैंकली डिड द हाईएस्ट टर्नओवर। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि थोड़ा सा यू कैन से, आई वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट आई हैड अ डिस्प्यूट विथ माई पार्टनर्स। और जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा तो वहां पे मेरे को समझ में आया कि क्यों हुआ वो। तो उसमें कुछ गलतियां उनकी थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी वो ये थी कि आई वॉज एरोगेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड, बिकॉज आई वॉज सक्सेसफुल। जो भी मेरा प्लान था 35 फ्री, तो वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप वो मिल रही थी मुझे। और थोड़ा सा मैं वो ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते, कॉन्फिडेंस बोल सकते, एरोगेंसी बोल सकते, तो वो था। तो मैं वो चाहता था कि मेरे को कोई भी इसमें ना, मैं जो बोलता हूँ वैसा होना चाहिए जिससे कंपनी को फायदा होगा। और जेन्युइनली जो मेरी जो ख्वाहिश थी वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई कि आई हैड अ डिस्प्यूट विथ माई पार्टनर्स, सो दैट वाज अ फर्स्ट सुनामी। और ऐसे हो गया कि वो डिस्प्यूट इतना बढ़ गया है कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट के ऊपर ही उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप छोड़ दो, और मैंने एग्री कर दिया। कैन यू इमेजिन, जो प्रोजेक्ट के लिए मैंने ऑलमोस्ट 4 इयर्स मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 3 इयर्स यू कैन से, 15 पूरा साल, 16 पूरा साल, 17 और फोर्थ ईयर का हाफ, ऑलमोस्ट 3.5 years आई हैव इन्वेस्टेड। वो मैंने वन स्ट्रोक आई रिजाइन ऑन व्हाट्सएप चैट, एंड इट वाज अ वेरी बिग, मुझे ऐसे लगा कि इसे नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि जो मेरे पार्टनर्स थे उनको क्या लगा कि वो एवरीथिंग सेट था, सिस्टमेटाइज था, तो उनको लगा कि वो टीम उनको सपोर्ट करेगा जो बिल्ड किया है, और उनको मेरा जरूरत नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे ही था,
कि वो इतना सिस्टमेटाइज मैंने किया था कि मेरा रोल बहुत कम था, मैं सिर्फ माइंडसेट के ऊपर मेरी टीम को थोड़ा सा मैं बेनिफिट्स देते था, और वो चीज की वजह से वो स्टार्ट हो गया डिस्प्यूट। एंड उन्होंने मेरी टीम को बोला कि ऐसे से राजकुमार वांट्स टू परस्यू इन डिफरेंट फील्ड, और वो छोड़ना चाहता है। तो मेरे टीम ने, मैंने नहीं बताया, मेरी टीम को फिर उन्होंने बुला के सारा डिस्कस किया उनके साइड से, और उसके बाद वो टीम मेरे पास में आ गई और मुझे पूछा क्या हुआ राज। तो मैंने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे है, मैं ऐसे चाहता हूँ, इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, और ये उसकी वजह से मैंने छोड़ा है। तो वो सारे जो मेरे टीममेट्स है उन्होंने बोला कि नो, वी विल सपोर्ट यू, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड उन्होंने बोला कि अनकंडीशनल, लाइक जब वो निगोसिएशन चल रहा था तो उन्होंने मुझे आके बोला कि राज, इधर यू स्टार्ट, वी विल ज्वाइन यू, अदरवाइज हम दूसरा फार्मा कंपनी ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मैंने वो बहुत एफर्ट से वो टीम बिल्ड किया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आई विल नॉट लूज देम। तो मैंने बोला कि आई विल गिव अ ट्राई, बट माई सिचुएशन वॉज कि आई ऑलरेडी हैड अ लोन ऑफ 50 लाख, my EMI was 70,000 rupees, and Helfand was the only earning source for me, because मेरे जो other projects थे वो just start हुए थे, like they were not matured। तो वो situation था, and वो मुझे बोले, like एक कलीग मुझे आके बोला कि सर मेरा 5,000 रुपीज एक्सपेंस है, अगर आप उतना भी देंगे ना तो भी मैं आपको ज्वाइन करूंगा। और ऑन द अदर हैंड जो मेरी एग्जिस्टिंग टीम थी, वो जो मेरे अदर पार्टनर्स है, उन्होंने उनको ऑफर किया था वी विल पे यू डबल सैलरी। And but still they were so loyal, and they told me ki Rajkumar, we will support you. And friends, in 7 days, like I had a dispute on 22nd August, 24 August my team told we will support you. On 1st September, in 7 days we launched pharma company. And it is like, if you ask any person in pharma, it takes minimum 3 to 4 months to launch a pharma company. Just because of my team and their faith and their support, we took the decision and we launched it. इसमें बहुत सारे जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, लेकिन we started that। अभी इसमें दूसरा चीज ऐसे था कि जो फंड्स था वो कहाँ से लाएंगे ना। सो इन दैट माय जो फादर इन लॉ थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने, सो दे सपोर्टेड मी। वो इंसिडेंट्स के टाइम पे मैं मेरे मेंटोर्स को मिला, डॉक्टर माने सर को। उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने उनको पूरा मेरा प्लान बताया और मैंने बोला कि सर ऐसे प्लान कर रहा हूं। See, they just told me one line कि you can do it, and I took the decision। उनके जो मेंटोर्स है उन्होंने मुझे बोला कि you can do it, मोहन सर थे, उन्होंने मुझे बोला you can do it। Only because of these people I was able to think about it, or I was having that faith कि no, really I can, I should do this। And it was very tough situation, and we started। Now we started that project, but see, my partners in two partners were common in clinic and pharma। सो आई वॉज न्यूट्रल। मैंने उनको बोला कि यार ठीक है, वो फार्मा जो कंपनी वो एक अलग प्रोजेक्ट है, यू डोंट मिक्स इट। बट दे हैड लाइक कि मैंने थोड़ा कहाँ पे तो भी ईगो हर्ट किया था, तो उन्होंने फिर बोला कि वो क्लिनिक के ऊपर वो सारी चीजें आ रही थी, और तभी तक वो क्लिनिक ये नहीं था, लाइक इट वॉज नॉट इन प्रॉफिट, सो वी नीडेड मोर इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप रुकिए, हम थोड़ा थोड़ा और डालेंगे, ऑलरेडी हमने इतना इन्वेस्ट किया है। तब तक हमने ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। मैंने बोला आप मत करिए, आप थोड़ा सा, सबको मैंने कन्विंस किया। तो उसमें वो उनका एक ही था कि नहीं, वो नहीं करना है कंटिन्यू। सो उन्होंने बोला कि वी विल क्विट, बट आई वॉज नॉट रेडी। मैंने बोला कि मेरे पास एक्चुअली रिसोर्स नहीं थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि 3-4 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी मैं 20 लाख रुपीज कर चुका हूं। फॉर दिस 5 लाख रुपीज आई कांट मिस दिस 20 लैक्स। एक्चुअल कैसे था कि हर एक ने अगर 1-1 लाख रुपए किया रहता तो भी हो जाता था, लेकिन वो रेडी नहीं थे, इसलिए मेरे को अकेले को करना था, तो मेरे को 5 लाख रुपीज का रिक्वायरमेंट था। बट अगेन लाइक वो गॉड्स ग्रेस से वो हमने डिसीजन लिया, मैंने उनको प्रपोजल दिया कि मैं टेक ओवर करता हूँ और मैं आपको रेंट पे करूंगा, और वो एग्री किया उन्होंने, और उन्होंने वो क्लिनिक मुझे हैंड ओवर कर दिया। और सितंबर 2018 से मार्च 2020 तक हमने बहुत एफर्ट्स लिया उसके ऊपर। माने सर ने तब तक रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज का ये पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे थे, और वी स्टार्टेड वेरी वेल। देन
वी वेर स्लोली ग्रोइंग, लाइक कि हमने प्लान किया था कि हम धीरे धीरे इसे ग्रो करेंगे, हम इसके मल्टीपल सेंटर स्टार्ट करेंगे. हमने और एक सेंटर स्टार्ट किया NIBM रोड पे. वहां पे हमारा प्लान था कि वी विल एक्सप्लोर दिस रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज. और बाय द एंड ऑफ 2020 हमारा गोल था कि वी शुड हैव एटलीस्ट 5 सेटअप्स, क्योंकि ऑफलाइन एक्सपेंशन तो वो धीरे धीरे होने वाला था. और March and April was expected to be the biggest month for us, and the second wave of tsunami, COVID pandemic hit us, and it hit us big time. अप्रैल, लाइक मेरा जो प्लान था उसके प्लान के हिसाब से तो 2022 में ही मैं पूरे मेरे फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करने वाला था, एंड इट बैकफायर्ड. इट वाज अ very big stroke for us. April was expected to be biggest month, biggest, and अप्रैल एंड मई हमें वो पूरा क्लिनिक बंद रखना पड़ा, क्योंकि जो मेरा सेटअप है वो एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में. तो वो जो वहाँ के प्रीमाइसेस के जो मेरे जो अदर जो भी फ्लैट होल्डर्स है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मत चालू कीजिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं. और मैंने एग्री किया. आई हैव kept it closed for 2 months completely, and that 2 months we did maximum work, maximum. इतना काम किया वो 2 महीने में. उसको वो जो पूरा ऑफलाइन था, सिचुएशन ऐसा था कि मेरे जो पेशेंट्स थे वो उनके गांव में थे, डॉक्टर साहब जो थे वो दौंड में थे, क्लिनिक पूना में है, जो पेशेंट का फाइल है वो पूना में है. और कुछ भी हमारे पास में, क्योंकि हम फाइल में लिख के ऑफलाइन था तो वो पेशेंट हमेशा लेके आता था, तो हमें रिक्वायर नहीं था वर्चुअल पे रखने का. तो वो पूरा मेसअप हो गया. कुछ पेशेंट ऐसे थे कि जिन्होंने हमारे ईयरली पैकेजेस दिसंबर में लिए थे, उन्होंने हमको बोला कि हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते, हम नहीं चाहते वर्चुअल, क्योंकि आपने जब हमें प्रॉमिस किया था तो आपने ऑफलाइन का किया था. तो वी रिफंडेड देम. जो पैसा था वो हमने रिफंड किया. कुछ पेशेंट्स का हमने कंटिन्यू किया, कुछ पेशेंट को हमने टेन्योर बढ़ा के दिया. एंड वी अपग्रेडेड. And this quote, which I read in 2012, every adversity, every failure, every headache carries with it a seed of an equal or greater benefit. ये मेरे हमेशा आंखों के सामने था. मैंने वो चैलेंज को कभी ऐसे नहीं लिया कि इट इज अ वेरी बिग, मैं इसमें खत्म हो जाऊं, कभी नहीं. मैं सिर्फ वो ढूंढ रहा था कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या हो सकता है, कुछ तो भी बड़ा हो सकता है. मेरे जो मेंटर्स थे, मेरे पूरे टीम ने बहुत एफर्ट्स लिए उस चीज में, एंड वी वेर कन्वर्टिंग दिस चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी. Second most important quote which I want to share with all of you is, talk what you want even if you don't have it, and don't talk what you don't want even if you have it. By Bill Britt. मैं चाहता था कि मुझे ग्रो होना है, मुझे मल्टी फ्रेंचाइज चाहिए, ये तो मैंने कभी नहीं बोला कि ये पैंडेमिक में मैं खत्म हो जाऊंगा, ये पूरा नेवर. वी वर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ग्रोथ, कि इससे कैसे क्या हो सकता है, क्या बड़ा हो सकता है. एंड वी डिड दैट. We converted this challenge into opportunity. And how? In both the situations, like in both these situations, there was big support from my team. There was financial challenge. सैलरी डिस्टर्ब हो गया था सभी का. जब सैलरी भी दे रहा था वो भी कम कम करके दे रहा था, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था, कैश फ्लो पूरा बंद हो गया था. माय टीम, गणेश, महेश, अजय, हितेश, अवंती, सूरज, सुनील, सुप्रिया, जूनियर सूरज, दोशिका का, निशा मैडम, ऑल माय टीममेट्स जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, दे वर्कड वेरी हार्ड. आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन है कि आपकी सैलरी कम हो गई है और वो जब ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे तो काम 2-3 टाइम्स है. हम सभी एक्सपर्ट्स थे ऑफलाइन में, ऑनलाइन करते समय तो बहुत टफ था. तो उनका काम बढ़ गया है और सैलरी कम हो गया है, लेकिन दे ऑल वेर वेरी, लाइक वो सभी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. वी ऑल वर्क वेरी हार्ड और उसमें से हम सर्वाइव हुए. अभी हम ग्रो कर रहे बिग टाइम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, लाइक आई विल लाइक टू थैंक वन पर्सन. ही इज नॉट इन द सेशन बट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लाइक जिन्होंने मुझे अनकंडीशनली मेरे पूरी जर्नी में सपोर्ट किया है. और वो है जो मेरे प्रीमाइसेस के जो ओनर है, मिस्टर नितिन किवलकर. He supported me big time. He supported like his kid. आप सोचिए कि कोई भी पर्सन आपको है ना सारी चीजों में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल जब आते हैं ना तो इवन आई सॉ कि इवन फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट नहीं कर सकते आपको, बट ही सपोर्टेड बिग टाइम.
लाइक उन्होंने, मैं डिफॉल्टर था, मैं रेंट पे करने में उनको बहुत बार मैंने डिस्टर्ब किया था, फिर भी ही सपोर्टेड. जब ये कोविड सिचुएशन था तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर पूरा लॉकडाउन है, ही हैज गिवन मी डिस्काउंट्स ऑन रेंट. एंड द हाइट ऑफ ऑल इज लाइक ही, लाइक मेरे क्लिनिक के सामने उनका और एक प्रोजेक्ट था, वो ग्रो हुआ तो उनको वो शिफ्ट करना था बड़े प्रीमाइसेस में. तो मैं डिफॉल्टर था, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि राजकुमार, इफ यू वांट यू कैन टेक ओवर दिस सेटअप. एंड बिकॉज ऑफ हिज सेटअप वी एक्सपांडेड इन दिस सिचुएशन, इन दिस एडवर्सिटी वी एक्सपांडेड, वी ग्रोन. हमने और एक जो अपोजिट प्रीमाइसेस था हमने टेक ओवर किया. एंड big support, there was very big support from all my family members, all my relatives. Special thanks to Neha. She's my wife, my partner, my best friend. She supported me and pampered me. Like, you just imagine you are under tremendous pressure and you need support from your family, and she supported big time in both this situation. My mother, everyone, Dadi, Ram Bhaiya, Kushali Bhabi, Papa ji, Mummy ji, my in-laws, my sister Radhika, all the kids, all supported big time. And because of their blessings, actually, we survived and we came out of this tough situation. All my team, all my doctors team, all, like, we have a team of more than 15 doctors here. Neeraj sir, Suyog sir, Kaustubh sir, Priya ma'am, Pallavi ma'am, Ramesh sir, Shiri sir, Harshada ma'am, Poonam ma'am, Ankit sir, Pooja ma'am, and all the doctors. Like, many doctors joined during this situation in pandemic also. My brother Deepak Bhaiya, Prakash Bhaiya, they also supported me big time. My friends, very close friends, Bhushan and Amit, they supported. Bhushan joined me in this time, and he was having very big like future in corporate, but still he supported. And because of his involvement, we are growing big time. Special thanks to all my mentors. They supported big time. Mane sir, Alka ma'am, then Cherian sir, Cherian ma'am, Mohan sir, Meena ma'am, Vante sir, Suvarna ma'am, everyone. They all supported me. There was big support from systems like this. Like, see, here Chitare sir is always telling कि only 10-15 entrepreneurs are joining. लेकिन आप समझिए, ये जो सिस्टम है, एग्जैक्टली एट दैट टाइम मैंने एक भी ये मीटिंग को मिस नहीं किया था. एक भी मीटिंग, मैं हमेशा ये फंक्शन में जाता था. ये जो सितंबर 2018 से जो पीरियड था, क्योंकि वहां से मुझे वो एनर्जी, वहां पे मैं ऐसे लोगों को देखता था कि जो फेल हो गए थे और वापस उन्होंने कम बैक किया था, एंड दे वर इंस्पिरेशन फॉर मी. एंड दिस सिस्टम, लॉट ऑफ एफर्ट्स. ये जो आज का सेशन है इतना इजी नहीं है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए और उनकी वजह से एक्चुअली वी आर एबल टू इंटरेक्ट. मे बी दिस स्टोरी मे बी यूजफुल फॉर समवन, may some person get inspired, or may some person can take a decision. So special thanks to them. Then other system, like we had Brit Worldwide system, Art of Living, Infinithism, I followed them and they all, like उनके बहुत सारे मैंने जो भी मोटिवेशनल वीडियोस थे मैं देखता था यूट्यूब के ऊपर, and they all supported. And special thanks to my God, Lord Krishna. And tough time, like spiritual, without spiritual support you will never be come back. It's not possible. And during this period, like in pandemic, I purchased one book of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and I read that complete book in 15 days. It was a, like you can say, 1,000 pages book, and that I read completely, and that supported, like वो सारी चीजें ध्यान में आती थी कि like if you just study Chhatrapati Shivaji Maharaj story, at the age of 37 when he had that TT, and when he was in you can say Agra, when he came back he was almost zero, and his age was around 37, and at the age of 50 he had 344 or 350 forts, actually big time growth. So that inspired me. And the infinite intelligence, like, see, if you have challenges, you just focus, you have faith, and this can help you big time. I would like to share with you, we have grown 25 years ahead. Like ये एक साल में हमने जो अचीव किया है, वो चीज की वजह से हमने ऑलमोस्ट 25 इयर्स में, अगर हम जहां पे पहुंच सकते थे आगे, वो हम एक साल में पहुंच गए, क्योंकि पूरा वर्चुअल है. Like we have done this virtual expansion, very powerful system. Now we can prevent and reverse lifestyle disease across India, across globe. And see, like today we have patients from Pune, Mumbai, Madhya Pradesh, Delhi, Mozambique, California, Singapore, and we are treating them, we are reverting them.
लाइक आप सोचिए, ये 1 साल अगर नहीं रहता था, ये पैंडेमिक अगर नहीं रहता था, तो हम यहाँ पे पहुंचने के लिए कम से कम हमें ऑफलाइन में 25-30 साल लगते थे, जो हमने सिर्फ 1 साल में हमें पॉसिबल हुआ है. एंड एवरी एडवर्सिटी, नेपोलियन हिल ने जो बोला, एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स द सीड ऑफ इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इनटू इट, एंड दैट रियली हैपेंड फॉर अस. We have started our first franchise this year, and we are having plan of 19 more by the end of 2021. Our goal is to have this Diabetes Mukta Bharat Abhiyan with diabetes education program. We want to educate 25 crore families by the end of 2050. और हमने ये सिस्टम को नाम दिया है TEDM, that is ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, डाइट एंड माइंडसेट. और इसका एक एजुकेशन प्रोग्राम हमने डेवलप किया है. ये हमारा विजन है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाना है हेल्थ के बारे में, और हमें मिशन ये है कि हमें अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब हमें हमारे वेलनेस सेंटर्स को लॉन्च करना है. एंड इट्स ऑल एजुकेशन, इट्स ऑल हेल्थ एजुकेशन. आप सोचिए, हम हमारे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन पे कितना खर्चा करते हैं. तो हमने इसे एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बनाया है. ये कुछ नंबर्स है जो WHO नंबर्स है. और ये बहुत बड़ा चैलेंज है. ये जो डायबिटीज है या डायबिटीज के रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है, ये पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अगर हम इंडिया की बात करें तो आज इंडिया में अराउंड 10% डायबिटीज के लोग हैं, 40% प्री डायबिटीज है जिन्हें कभी भी डायबिटीज हो सकता है, और 50% नॉर्मल है. लेकिन जो WHO उनका जो स्टैटिस्टिक्स है वो बता रहे कि बाय द 2040 50% ऑफ इंडियंस विल बी डायबिटिक. और हम इसे चैलेंज कर रहे हैं, हम इसे चेंज करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2050 इंडिया शुड बी डायबिटीज फ्री कंट्री. वी वांट टू मेक इट मुक्त. जैसे हमने पोलियो मुक्त भारत किया, वैसे हम डायबिटीज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं. एंड दिस आर द लाइक कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं. इसका जो मेन रूट कॉज है वो डाइट है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. और हमारे पास पेशेंट्स है जिनको हमने इसमें से बाहर निकाला है. बहुत सारे पेशेंट्स है जो अलग अलग प्रॉब्लम में से आते हैं, उसे हम एजुकेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, एंड नाउ दे आर कमिंग आउट बिग टाइम. सो दिस इज अ प्रोटोकॉल जिसमें TEDM है, ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है फॉर टेम्पररी टाइम, एक्सरसाइज है जो इफेक्टिव है, सिंपल है, वी डू डेली डाइट मॉनिटरिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइंडसेट. जो माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम वीकली सेशंस रखते हैं जिसमें हम हमारे पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं, और जो फ्री है. ये ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे कि ये जो माइंडसेट पार्ट है वो हम सभी को फ्रीली देना चाहते हैं, हम एजुकेट करना चाहते हैं सभी को. सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिससे डायबिटीज डेवलप होता है. और अगर जब आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो एक चीज होता है कि आप सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं और आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. हमारे पास हम रिवर्सल पे काम करते हैं, एंड डायबिटीज एंड रिलेटेड ऑल द थिंग्स यू कैन डेफिनेटली प्रिवेंट एंड रिवर्स. एटलीस्ट यू कैन रिवर्स द कॉम्प्लिकेशंस. ये मेरे मेंटोर है डॉक्टर राजेंद्र माने सर. इनकी वजह से लाइक जो भी करंट जो भी आप सक्सेस बोल लीजिए, जो भी मेरा करंट माइंडसेट है, इस सभी का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, ये इन्हें जाता है. आई मेट हिम माने सर अराउंड 10 years बैक जब मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, और ओनली बिकॉज ऑफ देम टुडे जो भी है ये सभी क्रेडिट उनको जाता है. वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर, ही इज डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम दौंड. उन्होंने MD बीजे मेडिकल कॉलेज से किया है. 33 years ऑफ रिच प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है उनका. और हजारों लाखों लोगों का उन्होंने जो डिजीज है उसको रिवर्स किया है. एंड जब वो पेशेंट्स आते तो वो लिटरली हम देखते हैं यहाँ पे कि वो आके यहाँ पे दे क्राई एंड दे टेल देम कि आई हैव नॉट सीन गॉड बट बिकॉज ऑफ यू आई हैव गॉट दिस रीबर्थ. एंड he is one of the very important person, like in my life also and in a life of many people. These are few testimonies I will definitely like to share with you कि जिन्होंने ये TEDM प्रोग्राम का यूज किया है, जिन्होंने ये लाइफस्टाइल डिजीज को कॉन्कर किया है, और इनकी वजह से एक्चुअली बहुत सारे और पेशेंट्स वो हमें बोलते हैं कि उनके रेफरेंस से आते हैं, वो बेनिफिट्स लेते हैं. एंड दे आर नॉट माई आवर पेशेंट्स, एक्चुअली दे आर आवर पार्टनर्स. एंड it's really like because of them we are able to reach, and we have 100% confidence that we will be able to educate 25 crore families by 2050. So ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं. ये कुछ टेस्टिमनीज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ. सो बहुत सारे लाइक आप देखेंगे 10-15 साल का डायबिटीज है जो 6 महीने में, 15 महीने में, 18 महीने में उन्होंने रिवर्स किया है.
बहुत अच्छे से वेट लॉस किया है। तो ये सभी का जो मेन पार्ट है, ये जो पूरी चीज है, लाइक इसमें दो चीजें है, एक हेल्थ एजुकेशन है, एक फाइनेंशियल एजुकेशन है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी है, और इसमें मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि आपके सामने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोड है, जहां पे अगर हेल्थ भी लेना है तो भी एक कॉम्प्लिकेटेड रोड है, और वेल्थ क्रिएशन के लिए भी एक कॉम्प्लिकेटेड रोड है। लेकिन अगर आपको एक कोई सही मेंटोर मिल जाए तो मे भी ऐसे हो सकता है कि ये रोड आपके लिए थोड़ा सिंपल हो सकता है। इट्स पॉसिबल। So this was my goal, and this year in 2021, I will be 35-year-old, and by 31st December 2021, because of my mentors, I will be financially free. I will have 5 lakh plus income plus 5 plus sources. But this is not over. Like see, financial freedom या ये जो अर्ली फ्री होना, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी 2022 से मैं घर पे सोना चाहता हूँ, मैं मेरा टाइम कहाँ पे तो भी वेस्ट नहीं, ये गोल नहीं है। ये सिर्फ एक चीज है जिससे मेरी फैमिली सिक्योर्ड होने वाली है। लेकिन जो मेरा रियल गोल है इसके बाद में, वो ये है कि कम से कम 1000 लोगों को, 1000 एंटरप्रेन्योर्स तो भी मैं सर्च करूंगा, मैं उनके तक पहुंचूंगा, वो मेरे तक पहुंचेंगे, और मैं उनको ये ड्रीम देना चाहता हूँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज का ड्रीम था कि स्वराज्य चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है वो ये चीज को देखे। ये जो मेरा स्टोरी है, इट्स अ वेरी सिंपल है कि ये जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। जो रॉ प्रोडक्ट था ना, वो बहुत सिंपल था, बहुत एवरेज था, लेकिन एक मेंटोर थे और एक गोल था, उसकी वजह से ये पॉसिबल है। एंड मेरा यही आगे एक ड्रीम है कि मेरी वजह से अगर किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को अगर ये ड्रीम मिल जाए, और अगर मैं उसे अगर एम्पावर कर सकूं जैसे मेरे को मेरे मेंटोर्स ने किया, सो दैट विल बी अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। इन 2019 एक्चुअली आई डिड वन प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप था, तो मैं चाहता था कि कुछ करूं और इसमें। सो आई एम अ फैकल्टी, नेशनल फैकल्टी ऑफ EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें की जो ये राइट माइंडसेट की वजह से मुझे मिली है। These are my details. And lastly, I will like to tell all of you that it's not about ideas. हम सभी के पास में बहुत सारी आइडियाज होती है, हर एक के पास में होती है, बट इट्स अबाउट मेकिंग योर आइडियाज हैपन। मेरे पास में भी एक आइडिया थी कि 35 फ्री, और मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये चीज के लिए अपोज किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लोगों ने मेरा फन उठाया, लेकिन मैंने इसे छोड़ा नहीं है। जब मुझे एक व्यक्ति मिला, उन्होंने तो पूरा वो चेंज कर दिया। उन्होंने मुझे एक राइट डायरेक्शन दिया, राइट एक रोड दिया, एक मैप दिया, धीरे धीरे मुझे माइंडसेट प्रोवाइड किया, और उनकी वजह से एक्चुअली ये जो भी आज मेरे जो भी पास है, जो माइंडसेट है, उसका पूरा जो श्रेय है वो उन्हीं को जाता है, जो मेरे मेंटोर्स है, डॉक्टर माने सर, डॉक्टर जो अलका मैम है, मोहन सर है, मीना मैम है, चेरियन सर है, वंटे सर है, वंटे, उन सभी को ये जाता है। और जो ये एसोसिएट्स है, लाइक चित्तरे सर को जब हम मिलते हैं, उनका स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्स रियली इंस्पिरेशन। इतनी जगह पे वो आज भी ये मीटिंग में वो है, लेकिन इसके पहले उन्होंने कितने तो भी ऑलरेडी फंक्शंस अटेंड किए एज अ वॉलंटियर, एंड ही इज पुटिंग एफर्ट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ सो मेनी पीपल। लाइक जो आर्मी है, उनका भी एक गोल है कि जो उनके जैसे जो लोग हैं, जो आर्मी से बिलोंग करते हैं, उनको वो एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं। तो इन सभी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। सो आई विल लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू गौरव सर, कि जिनकी वजह से एक्चुअली आज मुझे ये चांस मिला है आप सभी के साथ में डिस्कस करने के लिए। थैंक्स टू चित्रा सर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर giving like your precious time, your 45 minutes, 1 hour, and for patiently hearing my story. And I blessed you ki you will get some insights, and definitely you must achieve financial freedom in coming future.